and welcome to Business Guru Show. I'm your host Shazia Naz Khan. In this show, we deep dive into the world of business, where we bring you the insights, stories, expert opinion and advices. Today, I'd like to introduce someone new to our Business Guru family. Joining me as a co-host, Diwan Tayyab. Welcome to Business Guru. Thank you, Shazia. Thank you for having me on Business Guru. I'm thrilled and excited to be a part of Business Guru. With 17 plus years in this industry, I feel there's an old saying that says, you can never stop learning. And hopefully, with this show, we hope to have more understanding and business insights by our guests, so we can all learn and grow together. To our loyal viewers, we promise with Tayyab on board, we'll bring you insightful and more dynamic discussions. To those who might be new to the show, with Business Guru, this show is a go-to place for all things business. With this show, we aim to inform, entertain, and inspire our audience. Keep watching Business Guru every week, Sunday, 8 p.m., Channel 5. Together, we are building Pakistan. Assalamu alaikum. Welcome to another exciting episode of Business Guru. Let me introduce my new co-host, Diwan Tayyab. He'll be hosting the show today with me. Thank you, Shazia. It's a pleasure to be your co-host. Let's talk about today's episode. We have very special guest tonight with us. He is a pioneer in the cinema and film industry, a visionary who has transformed the landscape of Pakistani cinema industry. So please join us in welcoming Mr. Nadeem Manviwala. Thank you, Nadeem Saab, for being with us today. It's our honor and privilege. Thank you. Nadeem Saab, as everyone knows in Pakistan, कि आपकी माशाल्लाह family one of the prominent families है, जिन्होंने quality cinema Pakistan में लेकर आए, introduce किया, established किया, right? And also at the same time, you are undoubtedly one of the largest film producers and distributor. But before we go into that, I like to know you a little better as a person. So as growing up, what kind of relationships you had with your parents? Were they controlling? Were they giving you the freedom to choose and pursue what you wanted? How was your bond with your parents? We had a very wonderful parents, which had no restrictions. No restriction whatsoever? No restriction whatsoever. Wow. And when I did my college in St. Pat's in Karachi, and after that, my father died very early. Okay, sorry to hear that. So I was only 22 years old, and at that time, the responsibility came very quickly. Of course. So that probably changed us quite a bit. And it had already been a few years since I was sitting in the cinema. And 5-6 years had already passed. So by that time, I was pretty much in the know-how of how to run the cinema. And the cinema, we owned Nishat in Karachi. Of course, we know that. And because of that, because of Nishat, I learnt a lot. Okay. And at that time, the cinemas used to run with, one screen and big cinemas, 800 seats and all that. So for me, it became too exciting to do a lot of experiments. Right. Because there was nothing else to do. So I took Nishat as the vehicle to experiment as far as distribution was concerned and as far as releasing a picture was concerned. So as a kid, this is what you wanted? No, I had already done my college at that time. Okay. So graduation was already there. Right, yeah, तो जब बचपन में आप देखते हैं कि हमने वैसे देखा है स्कूल में जो बैक बेंचर्स होते हैं वो यूजुअली इंडस्ट्री लीडर्स बन जाते हैं, वो टॉप बिजनेसमैन बनते हैं, जबकि आपके जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं जो सारे सवाल करते हैं टीचर्स से, वो यूजुअली आपके जो होते हैं दे आर गुड मैनेजर्स, तो व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट वर यू एंड did you actually from a young age aspire to be in this industry of cinema, या आप कुछ और देखते थे अपने आप को? पता नहीं, somehow I was too focused. And after my metric, basically I knew one thing, that we come from a business family. So I should be good in accounts. Good in accounts? Yeah. Okay. So that was my complete focus in my college. Okay. And there was nothing else for me. All the other subjects were just, if I would pass, that would be okay. Right. That's fine.
but I had to do good in accounts. So and I did good in accounts. So you took it upon yourself कि जी मैंने accounts में अच्छा Yeah, because once again the background was business, so that was in my mind, and it kept remaining there for the next 4 years since we did BCom. अच्छा. And after that, cinema had become too big a passion for me. Okay. We were 4 brothers, but I was number 2, and somehow I grew with the cinema. And then the biggest challenge came. After sitting in the cinema for 5 years, the biggest challenge was that why the cinema is so bad in Pakistan. ये realization आपको 5 साल बाद हुई? ये 5 साल में हुई. Okay. क्योंकि वो 5 साल बैठ के लोगों से पूछ के कि भाई पीछे क्या हुआ. And my biggest learning came from our manager. Okay. Okay. Because he was there since 1947. Wow. The day cinema opened up. So he knew everything. And I used to keep on asking him कि मुझे बताएं कि ये कैसे, ये खराब क्यों है, ये चीज़ खराब क्यों है, ये चीज़ ठीक क्यों नहीं है. To understand आप 80s में आए and 60s and 70s being our golden era, so 80s was quite a bit of decline at that time. आपके stars भी काफ़ी एज के हो गए थे और आपका सिनेमा भी डिक्लाइन कर गया था, पाकिस्तानी सिनेमा, एंड एक मार्शल लॉ की लहर भी आ गई थी उस ज़माने में. तो चूँकि दैट्स द टाइम यू स्टार्टेड योर करियर. 87 you started or No, 80? no, 80. 80 you started. 1980. तो मतलब आप राइट ऑन द डिक्लाइन आए. Yes. Actually, right on the decline was not the industry. Okay. It was the new invention. So were The we not invention keeping up was with time? VCR. VCR. I knew you were actually going to say Yeah. that. That I've was seen the a lot of decline. you're Because absolutely right. we never regulated VCR. And till today, it's already been 45 years, and we have still not regulated it. Sir, on the very same topic that we're talking about right now, we all know and we have observed as very closely as well that you've been very vocal about anti-piracy and you've been a strong advocate on implementing the regulation. But ये मुझे बताएं कि कौन से रोड ब्लॉक्स एंड कौन से बैरियर्स आपने फेस किए कि आप ये इम्प्लीमेंट कराने में कामयाब नहीं रहे इस इंडस्ट्री में. आप एक्नॉलेज करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा. यू थिंक दैट यू हैव आज तक किसी ने एक्नॉलेज ही नहीं किया कि ये प्रॉब्लम है. ओके. तो चूंकि आप उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते तो जाहिर सी बात है वो प्रॉब्लम वहीं का वहीं रहेगा. But you have been a strong advocate, right? You have been always. saying it openly Always. as well. But okay, let's go off the screen कि आपने इसके बारे में real efforts जो हमें करनी चाहिए थी या जो हो सकती थी उसमें इससे ज़्यादा नहीं कर सकते कि आप 12 सेनेटर्स को चैलेंज कर दें. अच्छा. 12 सेनेटर्स की कमेटी बैठी हुई है एंड आई चैलेंज देम कि आप ये जो इलीगल जितना चीजें चल रही हैं किसी केबल पे वो बंद करा के दिखाएं. तो वो भी चुप कर गए आगे से, उन्होंने बोला नहीं कुछ. They didn't say, they didn't reply. As a distributor, like there are other distributors as well, was it not a possibility to come as a unified front and make sure this was implemented? मैं आपको उसकी वजह बताऊं, because we remained in a survival stage. 1980 के बाद से जो डिक्लाइन आता रहा VCR की वजह से, right. और एक्चुअली तो 1980 के बाद 1965 to 1980 the Pakistani public could not see Indian films. Right. Yeah. 65 में बंद हो गई. And then it reopened in 1980 through VCR. Okay. और कोई तरीका नहीं था आपको इंडियन फिल्म देखने का, ये नेट वेट नहीं था. जी बिल्कुल. There was no internet, there was no web. Right. Yeah. So सबसे पहली चीज आई आपकी VCR, और VCR के थ्रू आई इंडियन फिल्म वापस. बिल्कुल. और अगर आप इंडिया का भी वो एरा उठा के देखो तो 1965 से 1980 तक इट वाज एन आउटस्टैंडिंग एरा ऑफ इंडिया आल्सो. जो पिक्चरें उसमें बनी हैं वो कमाल की थी. बिल्कुल. और गुड फिल्म, गुड एक्टर्स, एक्टर्स, फिल्में, गाने, सब हर चीज कमाल की थी. तो हमने और वो इन्फ्लक्स पूरा आपको आना शुरू हो गया. नहीं, मुझे एक बात बताएं कि हमने उनसे इंस्पिरेशन क्यों नहीं की कि हम अपनी फिल्मों को और बेहतर बना देते. हम भी जरा अपना, क्योंकि आप तो आइसोलेट हो गए, थोड़ा ऊपर कर देते हैं. आप आइसोलेशन में चले गए ना. आपका एक कंपटीशन चल रहा था 65 तक कि इंडिया से एक फिल्म आती थी, एक फिल्म हमारी जाती थी. और मैं आपको बड़ी एक बात बताऊं जो शायद बहुत कम लोगों को पता है.
जी कि सबसे पहला झगड़ा जो हुआ था वो पाकिस्तानी फिल्म से हुआ था, इंडियन फिल्म से नहीं हुआ था। व्हाट डू यू मीन? हमारी फिल्म गई थी वहाँ पर और वहाँ के सिनेमा को जला दिया गया था क्योंकि वो फिल्म हिट हो गई और जो इसके साथ इंडियन फिल्म लगी थी वो फेल हो गई। What year was this? दिस वाज इन द 50s। In the 50s. और उसका एक रिबटल हुआ था पाकिस्तान में विच वाज नोन एज जाल मूवमेंट। एक पिक्चर आ रही थी इंडिया से जाल के नाम से, तो यहाँ की पूरी इंडस्ट्री ने उस किस्से के ऊपर यहाँ मूवमेंट की थी। ओके और ये मोहम्मद अली वगैरह जो आपके स्टार्स थे, इन सारों ने ये मूवमेंट की थी और अयूब खान साहब ने उनको अरेस्ट कर लिया था। और फिर वो पिक्चर लगी पाकिस्तान में। सो हमारे यहाँ जब भी झगड़ा हुआ है फिल्मों के ऊपर, वो इंडिया से हुआ है, वो पाकिस्तान से नहीं हुआ है। But like you said, कि 70s was a very good time for the Pakistani cinema, right? And 70s, the 80s was the VCR time. Is that what you're saying? Yes. But 80s में जो VCR आया, is that the whole reason for the Pakistani cinema not to do, you know, or to start declining at least? पाकिस्तान में 90% पब्लिक जो है वो उर्दू बोलती है। Of course. तो उर्दू फिल्म दो ही मुल्क बनाते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान। बिल्कुल। सो अगर आपकी 90% पब्लिक वो देखती है और उसको वो चीज इलीगली मिले और लीगली नहीं मिले। मगर सर मेरा एक सवाल है, जी जी देखें अगर 80s में वो लोग मूवीज बना रहे थे तो हम, ठीक है पायरेसी दोनों तरफ जा सकती है, एक तरफ उधर भी जा सकती है। अगर हम अपना कंटेंट अच्छा होता और एट पार एट 60s एंड 70s के पार पे हम लोग वही मूवीज वो बनाते रहते। मेरा आपसे सिर्फ पिन सवाल ये, what caused, I mean, leaving piracy behind, because I personally believe कि piracy दोनों तरफ से हो सकती थी। अगर हमारा कंटेंट इतना अच्छा होता और अगर हम उस पार पे चलते रहते 70s के 60s के, तो इसी तरह से फिल्में उधर भी जा रही होती, piracy के थ्रू ही जा रही होती। क्योंकि देखें आपकी उर्दू सिनेमा is actually much appreciated all the way up to Nepal, from what I believe and what those people have told me. Yeah. तो अगर हमारा वो चलता रहता तो हमारे डिक्लाइन, piracy alone can be one of the factors, yes, but हमारा डिक्लाइन एक डिबैकल इंडस्ट्री को क्यों हुआ? नहीं, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो फिर वो उस जमाने में भी आपके ड्रामे वहाँ बहुत मशहूर थे। नहीं सर, मैं सिनेमा पायरेसी में जा रहे थे। बिल्कुल जा रहे थे, मैं वही कह रहा हूँ। मैं सिनेमा की बात कर रहा हूँ। दे हैड अ मच बिगर इंडस्ट्री, राइट, वी हैड अ स्मॉलर इंडस्ट्री। आज तक आपकी इंडस्ट्री जो है वो उनके साथ बहुत छोटी है। अगर हम 50 करोड़ रुपए की मार्केट है, वो 500 करोड़ रुपए की मार्केट है, तो आपका कोई कंपैरिजन वैसे बनता नहीं है, नहीं बनता। लेकिन अगर आप उनके साथ चलते रहते तो आपका एक कंपटीशन रहता। आपने उस कंपटीशन को खत्म कर दिया by banning Indian movies in Pakistan. No, you never banned them. You only banned them for the cinema. Okay. That was the biggest problem. Right. जब तक आपने बैन रखा हुआ था और पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं देख पा रहा था, वो बैन था। तो सर फिर इस तरह से तो आर्गुमेंट यही है कि जब वापस आया इंडियन में मूवीज पाकिस्तान में फिर से लगने लगी, तो आई थिंक वी शुड हैव कम अप। आपने देखा नहीं कि क्या ग्रोथ हुई? From 2007 मैसिव ग्रोथ हुई है आपकी। So he's talking about 2007 till 2019. Exactly. Right. तो सर my question was keeping this in line, होता क्या सर कि हर मुल्क का एक नैरेटिव है। आप देख लें फ्रॉम द थर्ड राइक ऑल द वे अप टू प्रेजेंट टाइम्स, एक मुल्क का सिनेमा उसका एक नैरेटिव है, वो क्या अपने मुल्क का दिखाना चाहता है। आज हमारे पास हमारा नैरेटिव खो गया। आप क्या समझते हैं सर कि प्रेजेंटली एट द करंट स्टेट ऑफ सिनेमा हमें क्या अब वो क्या चीज़ चाहिए बिसाइड्स, आपने एक बात करी कि जी देयर इज ऑफ कोर्स दैट कंपटीशन दैट नीड्स टू बी देयर, व्हाट एल्स डू यू थिंक कि हमें करना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग वॉर फुटिंग पे रोल, इसको वापस से एक रिवाइवल की तरफ लाने में? फिल्में, द ओनली आंसर इज फिल्में बनवाएं, दैट इज ऑल। देखें, इट्स नॉट अबाउट इंडियन फिल्म्स, इट्स अबाउट फिल्म्स। राइट। इंडियन फिल्म्स तो आप सिर्फ इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आपको एक बनी बनाई चीज मिल रही है और आपके पास एक और गैप आपकी जबान में मिल रही है, वही आप बना लें। हम इतने सालों से 2007 से लेके 2018 तक हम इंडिया से कितनी फिल्में ला रहे थे? 80-90। हम ये तो नहीं था कि हमको वहां से 250 फिल्में ला रहे थे। वी वर ओनली इम्पोर्टिंग 80-90 फिल्म। तो सर हम क्यों नहीं बना रहे? हम इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि आपकी फिल्म इंडस्ट्री में इकोनॉमिक्स नहीं। ओके। जिस दिन वो इकोनॉमिक्स आ जाती है, एक्चुअली हम वो इकोनॉमिक्स ही बिल्ड कर रहे थे। And that's when, हम बिल्ड कर रहे थे, we were 50% थ्रू। तो हम आपसे जो लर्न करना चाह रहे हैं वो इकोनॉमिक्स लर्न करना चाह रहे थे कि इकोनॉमिक्स क्या है। 2018 तक हम 50% अचीव कर चुके थे।
राइट। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जो दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज में नहीं है। लाइक चलिए हम इंडिया को ही मिसाल ले लेते हैं राइट। कि इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर सिर्फ थिएट्रिकल रेवेन्यू नहीं, वहाँ म्यूजिक रेवेन्यू भी है, बिल्कुल। वहाँ डीवीडी रेवेन्यू भी है, वहाँ सैटेलाइट रेवेन्यू है, वहाँ ओटीटी रेवेन्यू है। ये सारी चीज़ों का वहाँ पर रेवेन्यू आता है। Absolutely. जो फिल्म मेकर है वो सिर्फ सिनेमा से नहीं कमाता, वो इन जगहों से भी कमाता है, चाहे उसको छोटे पैसे मिले या बड़े पैसे मिले। It's part of their whole, calculation that how will they be generating revenue, It's calculated because it's regulated. Right. Everything is regulated. मुझे सबसे बड़ा शौक लगा था, मैं बॉम्बे में घूम रहा था एंड मैं जिन साहब के साथ था तो उन्होंने कोई स्टैलोन की फिल्म की बात की, तो मैंने उनको कहा कि वो तो अगले हफ्ते लग रही है हमारे यहाँ। तो उसने कहा आपके यहाँ लग रही है, हमारे यहाँ तो मार्च में आएगी। तो मैंने कहा यार वैसे ही देख लेना। कहता कहाँ से देख लूं? मैंने कहा क्या मतलब? I'm so sorry, sir. We would love to continue this conversation, but we would like to go on a short break. And please stay tuned with us. Thank you. Welcome back after the short break. Let's continue talking. Please continue करें नदीम साहब। मैं आपको बता रहा था कि उनसे मैंने कहा कि भाई क्यों मार्च तक वेट करने की क्या जरूरत है, आप डीवीडी पे देख लीजिएगा। तो उसने कहा यार डीवीडी नहीं मिलती। Because उनके यहाँ रेगुलेशन। मेरे लिए वो इतना बड़ा शौक था कि मैंने उसको कहा कि यार अभी मुझे डीवीडी शॉप पे लेके चलो। तो हम गए और मैं उस दुकान में जाके जब मैंने देखा तो एवरी डीवीडी हैड अ सेंसर सर्टिफिकेट ऑन इट and a government stamp on it. And that is where I knew why this industry is going forward. अच्छा मुझे And we couldn't. I understand where you're coming from, which is why I want to ask you at this point कि why have we not been able to implement this in Pakistan when we talk about regulation? इसका साफ जवाब है क्या? इसका साफ और जवाब। सर थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज आपसे पूछूंगा, बिकॉज आप भी सेंसर बोर्ड का हिस्सा रह चुके हैं and you've been a member. नहीं, you've not been been a member. Okay. Not been an official member, or was it unofficial? No, I was never been a official member of censor board. But let me just put it this way, then let me just say कि आपके पास थोड़ा सा political sway तो था। हाँ। तो वो आप use तो कर सकते। वो हमेशा ही रहा है, not political, but वैसे being a veteran of the industry हमेशा रहा है। तो उस पे आप नहीं कर सकते थे, इनको sway नहीं कर सकते थे through? नहीं, इसका सेंसर बोर्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं है। Okay. इसका मिनिस्ट्री से ताल्लुक है। So, like एक्नॉलेजमेंट से ताल्लुक है, इसका पार्लियामेंट से ताल्लुक है। लॉ तो बनाना है पार्लियामेंट। आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताऊं कि इट्स बीन 44 इयर्स सिंस वीसीआर हैड कम। आज तक आपकी डीवीडी शॉप को खोलने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए यहाँ पे। जबकि आप कोई दुकान नहीं खोल सकते विदाउट गवर्नमेंट लाइसेंस, बट डीवीडी शॉप के लिए लाइसेंस नहीं है। बट आपके ख्याल में ये अभी तक क्यों नहीं कर पाए? ये इसलिए नहीं कर पाया है क्योंकि अगर ये लाइसेंस कर दिया जाए और इसको रोक दिया जाए तो इंडियन फिल्म नहीं आ सकेगी। तो उससे हमारा फायदा नहीं है? हमारा फायदा ये है तो कि आप पूरी कौम को बगैर पैसे दिए हुए इंडिया को आप हर चीज देखने को दे रहे हैं। लेकिन ये क्यों नहीं होता? कोई एंटरटेनमेंट दे रहे हैं ना, आप प्रोवाइड कर रहे हैं। माय क्वेश्चन इज ये क्यों नहीं होता? क्यों नहीं करने देते? इसी वजह से नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं करने देते कि लाइसेंस इंट्रोड्यूस करें? तो लाइसेंस इंट्रोड्यूस करेंगे तो सारा इंडियन प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। That's what I'm saying कि ये हमारे मुल्क के लिए फायदे की बात है, तो ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? लेकिन उनके लिए फायदा ये ज्यादा है कि हम अपनी पब्लिक को फुल एंटरटेनमेंट देते रहें। घर में बैठ के एंटरटेनमेंट मिल रही है आपको, राइट, बट दिस इज और पैसे भी नहीं दे रहे आप आप किसी को कोई पैसे नहीं दे रहे। या बट लाइक एनी अदर इंडस्ट्री जहाँ पे आप ऐसी लॉज एंड पॉलिसीज मेक श्योर करते हैं कि जिससे आपका कलेक्टिवली एज अ बिजनेस फायदा हो, वो कंट्री को भी फायदा पहुंचाता है। तो माय क्वेश्चन इज कि ये कौन लोग हैं जो ये होने नहीं दे रहे, और ये इसमें फायदा तो किसी का नहीं हो रहा है, तो व्हाई आर वी नॉट एबल टू डू इट? फायदा तो जिनकी सोच है ये उनका हो रहा है। उनकी सोच ये है। किनकी सोच है? जिनकी भी है, आप खुल के बोले। हाँ, तो उन्हीं की सोच है ना। देखिए ये पॉलिसी मेकर्स है ना, एक पॉलिसी मैटर अगर होगा तो वो पॉलिसी मैटर कौन आपका पाकिस्तान में करेगा? या तो गवर्नमेंट करेगी, राइट, या आपके जो क्या नाम है आपका जो
जो Establishment बेसिकली कह लें। फोर्सेस हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, वो हम्म, करेगी। और खास तौर पे इंडिया के हिसाब से कोई भी चीज एस्टैब्लिशमेंट के बगैर नहीं हो सकती। ओके, ये ओवर द इयर्स 40 साल में मैंने एक चीज देखी है, एस्टैब्लिश के बगैर इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग अच्छा मुझे एज सर, फार एज इंडिया इज कंसर्न। okay, got that, thank you, but tell me one more thing, now since we are talking about this deep diving into this, कि कभी ऐसा हुआ कि आप जितने भी हमारी सिनेमा, हमारी इंडस्ट्री है, जितने भी हमारे प्रोमिनेंट फिगर्स हैं जो इस इंडस्ट्री के करते धरता हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, कभी वो यूनिफाइड होकर उनके पास गए हों कि देखिए ये हमारा बिजनेस मॉड्यूल है, ये हम कंट्री में इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हमारे ये कंसर्न्स हैं, ये पॉलिसी मेकिंग इस हिसाब से, आप यूनिफाइड फ्रंट पे कभी लेके गए उनके पास? लेके गए थे तो 2007 में खोला ना, तो साथ में खुला, बट तो आप कह रहे खुला हो, तो आपकी इंडस्ट्री को कितना फायदा हुआ, राइट, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री खत्म हो चुकी थी। 2006 तक वी वर लेफ्ट विद 15 cinemas बिल्कुल, throughout the country, not in Karachi, या वी आर अवेयर where ऑफ दैट, Karachi had 120 cinemas alone in 1980. यस, तो आपके पास 15 सिनेमा रह गए थे, और 15 सिनेमा से वी स्टार्टेड ऑफ विद 3-4 करोड़ रुपी मार्केट। जब हमने 2007 में पिक्चरें ला के लगाना शुरू की हैं, तो बड़ी से बड़ी पिक्चर का बिजनेस था 3 से 4 करोड़ रुपए, एंड 2018 में वो चला गया 40-50 करोड़ पे। बिल्कुल, वी ऑल आर तो विटनेस टू क्या दैट। कमाल की डेवलपमेंट हुई। अगर ये 10 साल और चल जाता तो हम 100 करोड़ पे पहुंच जाते। तो ये आप कह रहे हो सारे रेगुलेशन इम्प्लीमेंट हुए थे उस वक्त? नहीं, रेगुलेशन कोई नहीं था, आपने ओपन कर दिया। राइट, जो डिमांड थी लोगों की वो आपने सिनेमा में भी दे दी ना। हमारी भी डिमांड यही थी कि आपने उसको तो ठीक करना नहीं, तो ये ठीक कर दें, हमें कम से कम वो चलाने दें जो लोगों की डिमांड है। तो आप कह रहे हैं एक तरह से वो रेगुलेशन इम्प्लीमेंट ना करने पे आप लोगों ने कहा कि हम हार मान लेते हैं, नहीं, हार नहीं मान लेते, फोकस ऑन हार ओपनिंग नहीं मोर मान लेते। सिनेमास। हमने उसको प्रायोरिटी नहीं बनाया। ओके, हमने प्रायोरिटी इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो होना नहीं था ना आज तक हुआ। ओके, तो उसका दूसरा देखे ना, आज नेटफ्लिक्स चल रहा है, अमेजोन चल रहा है, बिल्कुल, यूट्यूब चल रहा है, आप किसको किसको बंद करेंगे? कर सकेंगे आप? अभी बिल्कुल हमने नहीं। एक केस फाइल किया है लाहौर में, और वो केस इसी बात पे, किस बात पे? यही पीटीए को, कि जी अगर वो अलाउ हुआ है तो इसका मतलब गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है इंडियन कंटेंट। तो वहां पीटीए ने आके जज के सामने कह दिया कि जी हम नहीं बंद कर सकते इसको। बात खत्म हो गई। अच्छा, अगर आप इन चीजों को बंद नहीं कर सकते तो आप बंद कैसे करेंगे? तो ये तो जो हो रहा है वो 50 साल से सिनेमा पे ही हो रहा है, और इसमें बर्बादी किसकी हो रही है? वो पाकिस्तानी सिनेमा की हो रही है। बिल्कुल, हालांकि हमें थोड़ी सी अकल से अगर हम सोचें तो हम अपने सिनेमा को बनाएं, हम अपनी फिल्म को बनाएं, और अगर मुझे उसके लिए टेम्परेरीली आपसे मदद मांगनी पड़ रही है, या आपकी चीज ला के मुझे उसको अपने आप को ठीक करने की अगर मेरे में जरूरत है, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? तो सर इसी से एक सवाल जुड़ा ये है कि आपसे थोड़ी सी शिकायत है बोलिए एज व्यूअर्स। बोलिए। सर आप पे सबसे बड़ा ये कि आपने 2 मूवीज बनाई जिसके आप प्रोड्यूसर रहे, एक उनमें से मोर थी। मोर मैंने पर्सनली नेटफ्लिक्स पे देखी, उससे पहले एक आर्ट मूवी थी, उस पर अवार्ड्स भी काफ़ी मिले, और ये मूवी शोकेस हुई नेटफ्लिक्स में। अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, ठीक है जी, इंडिया बोलता है कि अगर आप पाकिस्तानी कंटेंट लेंगे तो हमसे कंटेंट ना लें, और सबसे ज़्यादा कंटेंट इंडिया से आता है। मगर सर आपसे अगर मैं सवाल करूं, हमारा एतराज़ आपसे ये, हमसे अगर हम जुर्रत कर सके कि आपने 2 मूवीज़ बना के मूवी के बिजनेस को खैरबाद कह दिया। हालांकि अगर आई पर्सनली बिलीव, बोथ पर्सनली बिलीव कि अगर आप ये करते रहते तो आपने ये 2 मूवीज बना के क्यों इंडस्ट्री छोड़ी? माशाल्लाह आप इतने बड़े। छोड़ी नहीं, एक्चुअली वो दोनों मूवीज जो थी, एक हमने 90s में बनाई थी जी, और वी हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस इन दैट मूवी। राइट, खैर उसके बाद मैंने ये सोच लिया था कि मैं मूवीज नहीं बनाऊंगा जब तक मेरे अपने मतलब के लोग नहीं होंगे। यू मीन कास्ट? नो, कंटेंट, द मेकर्स। तो कंटेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कंटेंट की बात नहीं हो रही, मेकर्स, जो बनाने वाले, बिहाइंड द सीन्स की बात कर रहे हैं। और ये जो मोर बनी थी ये बेसिकली मेरी नहीं थी, ये जामी की थी जी। यू को-प्रोड्यूस्ड इट? हाँ, यस, तो वो जामी वो प्रोड्यूस कर रहा था उसको, जामी शूट कर चुका था राइट। जब मैं बीच में आया। अगर मैं होता तो ये पिक्चर बनती ही नहीं क्योंकि इट वाज नॉट अ कमर्शियल मूवी।
It was not. तो मैंने जामी को उस वक्त भी कहा, जामी ने मुझे कहा कि नदीम भाई आप सुन तो ले मैंने क्या बनाया, मैंने कहा मुझे सुनाना, क्योंकि शायद सुनाने से फिर मैं उसको चेंज कराने लग गया। राइट। तो तुमने बना ली है, अब तुम जो भी बनाया ठीक है। तो वी न्यू इट कि जब हमने पिक्चर देखी तो हमें पता था कि ये कमर्शियल मूवी नहीं है, Right. लेकिन उसने बनाई बहुत खूबसूरत थी। No, it was a, So it was हमने a उसको wonderfully उसी shot तरह के movie. से उसको रिलीज भी किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया। तो क्या हम फ्यूचर में एक नदीम बिल्कुल मालवी हम वाला काम कर produced रहे हैं, फिल्म देख बिल्कुल हम काम कर रहे हैं। Sir, the point is, देखिए, what he meant to say, and as we all expect from somebody who's got such a visionary, take on Pakistani cinema and films, you have seen like up and downs and stagnance, of the cinema industry and everything. आपको नहीं लगता कि आपको movies ज़्यादा produce करनी चाहिए थी? You could have actually actively participated, in growing this. Like we're talking about, there should be more films, there should be more better film, better content. You could have played your role in a much bigger way to bring more. एक्चुअली And- आपको मैं एक बड़ी अच्छी बात बताऊं कि मेरा सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो प्रोडक्शन की तरफ, Okay. बट कभी कभार अल्लाह आपको हर चीज़ नहीं देता। तो मैंने एग्जीबिशन बहुत की, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बहुत की, और Okay. दोनों में अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। Mashallah. एग्जीबिशन में भी बहुत ज़्यादा इज्जत दी और डिस्ट्रीब्यूशन में भी दी। समहाउ जब प्रोडक्शन की बात आती है तो वो अल्लाह ने अभी तक खींच के रखा हुआ है। Why? Why do you think? What are you scared of? I'm Or not what's scared of lacking? it. I'm not scared of it. But I cannot make something what I want to make. Why not? Because again वो आइडियाज आपको आते नहीं हैं कि अल्लाह आपको कहे कि हाँ भाई जाओ बनाओ। Sir, you have known people, skilled makers वो तो हम कर of रहे हैं, many decades. वो कर रहे हैं, वो कर रहा हूँ मैं, वो मैं Mashallah, कर रहा हूँ, you- लेकिन वो मुझ में खुद नहीं है। Right. आई कैन टेल यू ये अच्छा है ये बुरा है। तो मैं क्या ये समझ सकता हूँ आपकी बात से कि आप एक अच्छे कंटेंट की तलाश में हैं? बनाने की हद तक ओके, जो बना हुआ आता है वो हमारे लिए बहुत आसान होता है बताना कि ये अच्छा है या बुरा है। सही। Okay. लेकिन अगर आप मुझे कहें कि अच्छा ये बुरा है तो आप अच्छा बना दें, वो मैं नहीं कर सकता। राइट। You वो know that, क्वालिटी अल्लाह ने नहीं दी आपको सही। कि आप उसको अच्छा बना दें। right, but you know the right people. Yes, You know the right we are people, working the with them. good filmmakers. We are already working with them, So and आप hopefully, initiative, don't you think you should take an initiative of actually? yes, definitely. मैं बड़े सालों से लगा हुआ हूँ इसके पीछे, Hmm. और even Maula Jat was one present for me because I always believed on one theory कि पाकिस्तान में पंजाबी फिल्म का बिजनेस जो है Hmm. वो is much larger than an Urdu film, Okay. and the history also tells you that. Hmm. And I also believed it since we turned around in 2007 जब आपका ये नया सिनेमा बना, Right. और ये नया सिनेमा पुराने सिनेमा से बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल different था. And it happened ये- after a long gap. हाँ, ये it happened after a long gap, and this time you made a cinema which is of the international level. Hmm. We never had the international level in Pakistan. Yeah, हमारे whatever पास जो happened. सिनेमा हुआ करता था Right. वो तो प्री हिस्टोरिक था, मतलब वो 50-60s का सिनेमा था, Hmm. और वही हम यूज कर रहे थे till 2000. Hmm. And suddenly we the government changed two policies, और वो दो पॉलिसी की वजह से we had the option of making these great cinemas. जैसे आज अगर आप सिनेमास को देखने जाएं तो उनकी जो क्वालिटी है is amazing. मतलब आप दुनिया में कहीं चले जाएं आपको वैसी ही क्वालिटी मिलेगी। बिल्कुल. No, we did make a huge, I think, improvement in the quality and the production of the films. There is no doubt about that. But again, we are standing at the point right now where the cinemas are not, they're Yeah, not because the doing incentive well. was taken away. The movies are not being made, at least Okay, not enough so let's movies. talk about incentive then. You're talking about incentive. Can you please explain to our audience what do you really mean by this incentive? देखिए मैंने आपको बताया था that I came in 1980s. Right. जी. 1980s तक you had an industry. Sure. आपकी उर्दू फिल्में भी बन रही थी, पंजाबी फिल्में पंजाबी भी में बन रही थी। थी. You दूसरी had a भी बन रही vibrant industry which was going on. थी. अगर ये जो incentives हमने 2001 और 2007 में लिया था, ये हमें 2001 वाला इंसेंटिव जो है वो 1980 में ले लेना चाहिए था। 2001 में असल इंसेंटिव जो आपको मिला सिनेमा को वो 2001 में आया था। 2007 में इंडियन फिल्म का आया था। तो 2001 में गवर्नमेंट की तरफ से पुश था
प्राइवेट इन्वेस्टर की तरफ से? आपका सिनेमा ही खत्म हो गया। राइट, नहीं मैं रिवाइवल की बात कर रहा हूँ। मैं खत्म होकर 2001 के अंदर नैपडेक ने ये करवाया। ठीक। नैपडेक में एक एमडी आए, जनरल साहब थे रिटायर्ड, और उन्होंने आके ये किया। और उन्होंने आके पहली बार सिनेमा के ऊपर से एक तो एंटरटेनमेंट ड्यूटी खत्म की और दूसरा प्राइस कंट्रोल खत्म किया। राइट। टिल 2001 सिनेमा कुड नॉट कीप इट्स ओन टिकट। द गवर्नमेंट यूज्ड टू टेल यू कि आप टिकट क्या रखेंगे, एंड दैट इज व्हाई सिनेमा कुड नॉट इन्वेस्ट। अगर मैं अपने सिनेमा को ठीक कराने में करोड़ रुपए लगाता हूँ तो मैं 30 रुपए की टिकट नहीं रखूंगा। राइट, आई विल हैव टू इंक्रीज इट। तो मैं लगाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मेरे हाथ में ही नहीं था कि मैं 30 से ज्यादा की बेचूं, वो गवर्नमेंट के हाथ में। सो मैं ऐसी चीज में क्यों इन्वेस्टमेंट करूंगा जो जिसका रिटर्न ही मेरे हाथ में नहीं है। Sir, it's time to take a short break. We'll be right back. Don't go anywhere. We're gonna have to take a short break. Welcome back, ladies and gentlemen. Thank you for being patient with us. And शाजिया, आप इनसे ब्रेक पे जाने से पहले कोई बात कर रही थी। सर, आपसे एक सवाल है। वैसे तो काफ़ी सवाल किए हैं, लेकिन एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बताएं कि हमारे यहाँ बहुत लैक ऑफ फंडिंग है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग फिल्म्स, एंड स्पेशली फॉर न्यू फिल्म मेकर्स, एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स। तो वो किसके पास जाना चाहिए, किसका दरवाज़ा खटखटाना चाहिए टू गेट द इनिशियल फंडिंग टू स्टार्ट मेकिंग मूवीज़? एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Once you make a film, what we know, what we have found out, that 70-30 ka ratio, 70 is distributor and 30 is producer. Do you think with this, number, the producer is able to make the money, after producing the film? जिस पीरियड से हम गुजर रहे हैं, वो तो जो फिल्म मेकर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं वो फिल्में नहीं बना पा रहे। Right. तो नए की तो बातें आप छोड़ दें कि नया किसके पास जाए। चलें, पुराने किसके पास जाए? पुराने भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि देखिए सारी गेम जो है ना वो आपकी इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर आप देखने जाएं तो 2007 से लेके 2018 तक पाकिस्तान में बेतहाशा सिनेमाज नए नए बन रहे थे। बिल्कुल। और 2019 से वो रिवर्स में आ गए। बिल्कुल। वो बजाय बनने के वो अब गिरना शुरू हो रहे हैं जी। एंड हमें इसको रोकना बहुत जरूरी है। It's a very critical point right now. It's the most critical thing. सिनेमा मैंने आपको पहले ही बता दिया एक चीज कि पाकिस्तान में सिवाय सिनेमा के फिल्म का रेवेन्यू नहीं है कोई और। ना आपको म्यूजिक से कोई पैसे मिलते हैं, ना आपको डीवीडी से कोई पैसे मिलते हैं, ना आपको सैटेलाइट से मिलते हैं, ना आपको टीवी से मिलते हैं, ना आपको ओटीटी से मिलते हैं। But So we don't have any of these. Like your movie, More. That was an exception. At that time, Netflix was buying pictures from America. उसके बाद उन्होंने वो शिफ्ट कर दिया इंडिया में। So now India controls this region. Right. और उसके बाद से पाकिस्तानी कंटेंट बंद हो गया। राइट। जब से वो इंडिया के तो सर इसको क्या ब्यूरोक्रेसी लैप्स कहें, हम अपनी तरफ से पाकिस्तानियों की तरफ से? उनके वो तो आपको हर जगह से देखें, कोशिश तो उनकी हर जगह से लगी हुई है कि पाकिस्तान किसी तरह आगे ना बढ़े। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि भाई आपको तो किसी ने मना नहीं किया कि आप अपनी चीजें करें। क्योंकि इंडिया में सिर्फ नेटफ्लिक्स और अमेज़न नहीं है, उनके अपने भी 4-5 हैं। बिल्कुल सर, देखिए काफी सारे ओटीटीज हैं। एग्जैक्टली। और शाजिया, मैं जो सर से ये पूछना चाह रहा था कि देखिए सर, प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया हमारी बैशिंग बड़ी करता है ISI को लेके, हमारी गवर्नमेंट को लेके, हमारी पॉलिसीज को लेके, हमारे लोगों को लेके। आप देखेंगे उन्होंने हमारा एक पेक्यूलियर स्टाइल बना लिया, मजाक उड़ाने की हद तक कि जी हम एक सर्टेन वे में बोलते हैं, आप जनाब करके बोलते हैं, एक टोपी पहनी हुई होगी, एक तावीज़ लगा हुआ होगा और एक बात कर रहे होंगे। एक इन्होंने स्टेरियोटाइप कर दिया हमारा। उन्होंने हमारा एक नैरेटिव वो दे रहे हैं, this is true, so it's very hard for my words to come out of my mouth, but they're portraying us, they're painting a picture of us as terrorists. Movies like Tiger and so many movies like that, which actually shows their part of their narrative कि दुनिया को एक दिखाया जा रहा है कि जी पाकिस्तान का ये किरदार है अभी। तो हमारे पास कोई नैरेटिव तो है नहीं, हमारा कोई काउंटर नैरेटिव है नहीं।
which is what he's talking about, and I also want to know, and then we'll come back to the distribution side of the business. Actually, उनका narrative उनकी कमजोरी भी है, Okay. in my opinion. Sir, how is the narrative वो कमजोरी? narrative इसलिए कमजोर है क्योंकि मैं आपको सबसे बड़ी वजह बताऊं, अभी हालात जब अच्छे रहे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो हमारे एक्टर्स वहाँ चले गए जी, हमारे सिंगर्स भी चले गए। आपने देखा कि 2016 में क्या हुआ फिर उनके साथ? जी बिल्कुल, बैन। इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी इंडस्ट्री got scared of few people. Why? Pakistan is the only country in the world with whom India is scared of. They are not scared of anybody else. अमेरिकन वहाँ बेतहाशा कोशिश कर चुका है अपनी फिल्में चलाने की, बस नहीं सर चली। हमारे उनकी इंडस्ट्री के पार्ट होने ना होने से उनकी इंडस्ट्री ग्रो किए जा रही है, रुक नहीं रही है। हाँ, लेकिन वो प्रॉब्लम आपसे क्यों डरेगी? हमारा नैरेटिव पूरी दुनिया में लोगों को नहीं मिल रहा है। दैट इज व्हाट वो तो आप बना नहीं रहे हैं ना अपना नैरेटिव। आपको किसी ने मना तो नहीं किया कि आप अपना नैरेटिव ना बनाएं। That's what we're talking about. लेकिन अगर आप अपना सिनेमा ही नहीं बना रहे तो नैरेटिव कहाँ से बनेगा? सिनेमा बनेगा तो नैरेटिव बनेगा। सर ये 70-30 का जो रेशो है नहीं, ये गलत है। was a general practice or was it exceptional practice? Usually what happens is कि when a producer makes a movie, then the producer gives it to the distributor gives it to the exhibitor. Exhibitor और distributor के बीच में जो agreement होता है, that's more over 50-50. कि 50% of the collection goes to the exhibitor and 50% is paid to the distributor. Right. Now, distributor के साथ you can have not a constant thing, but it can change. That variation is there. It can start from 10% and it can go up to 30%. Okay. Or 40%. It depends what kind of an investment I'm doing on your product and what kind of a risk I'm taking on your product. Okay. If I'm not taking any risk on your product, then my commission is going to be very low. What do you mean when you talk about risk? जैसे आपने पिक्चर बनाई 10 करोड़ रुपए की, एंड आपकी पिक्चर भी बहुत अच्छी है, सो यू आर गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम द मार्केट। हर डिस्ट्रीब्यूटर आपको कह रहा है कि जी आप मुझसे कुछ पैसे ले लें, 2 करोड़ ले लें, 3 करोड़ ले लें। सो जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको आपने पिक्चर दे देनी है। अब एक आदमी आके आपको कहता है कि जी 5 करोड़ रुपए मुझसे मिनिमम गारंटी ले लें। मिनिमम गारंटी इज एन अमाउंट विच इज नॉट टू बी पेड बैक, आपकी पिक्चर कैसी भी जाए। ठीक है। सो आपकी तो 50% रिकवरी होगी। ऑफ कोर्स। अब 50% अगर मैंने आपकी रिकवरी कराई तो मैं फिर अपना कमीशन भी तो बढ़ाऊंगा, उस वक्त जाके मेरा कमीशन बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर मेरी वो 50% आपके ऊपर रिस्क नहीं है और रिस्क आपका ही है 100%, तो मेरा कमीशन भी बहुत कम होगा। सो इट इज वेरिएबल, देयर इज नॉट वन थिंग, बट होता क्या है कि जब आप पूरे को देखते हैं कि 100 रुपए अगर एक पिक्चर ने कमाए तो प्रोड्यूसर को कितने मिले, तो उसमें से 35 to 40% आपको आता है, प्रोड्यूसर को मिलता है। हाँ, सिनेमा और एडवर्टाइजिंग और कमीशन इन चीजों में निकल जाता है। और ये रेशो इंडिया में 28% है। अच्छा, वहाँ इससे भी कम है। 28% to the producer। हाँ, वहाँ उससे भी कम है। Okay. So sir, let me talk a bit about Maula Jat, because pertaining to cinemas, I think this was one of the biggest movies in Pakistan's history, let's say. According to you, जो आपने हमें stats बताए, 75 years का record break हुआ, 200 करोड़ रुपए का business किया। मौला जट अभी बनी तो कोविड से पहले, रिलीज हुई कोविड के बाद, लोगों ने देखा और आपने जैसे हमें पहले बताया कि अब भी सिनेमा हाउसेज में लगी हुई है, देखी जा रही है। तो सर आई डोंट थिंक कि रिवाइवल फिर तो मुश्किल ना हुआ। आज के दिन पे स्टैंडिंग वेयर वी आर राइट नाउ, अगर आप 50% मौला जट अगर 100% पे, तो अगर हम उसकी जैसी 50% भी मूवी लेकर आते हैं, आई थिंक इट शुड वर्क। इन थ्योरी यू आर राइट, ओके, बट द प्रॉब्लम इज कि प्रैक्टिकली मौला जट को देख के उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल काम है। इससे तो बड़े सवाल वो कोई कर नहीं पा रहा क्योंकि जब वो मौला जट को देखता है तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। ठीक। फिर जो वो बॉक्स ऑफिस पे आई तो वो रेवेन्यू इतना बड़ा है कि वो भी फॉलो करना बहुत मुश्किल। तो सर आप, बिकॉज यू वर अ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर with Maula Jat and you are very personally closely associated with the whole project in that sense, मुझे यही पता करना है कि मेरा सवाल एक्चुअली है कि सर हमारा कंटेंट का मसला
हमारा इक्विपमेंट का मसला, हमारा लैक ऑफ टैलेंट का मसला, इन तीनों मसलों में से आप इन 3 मसलों को एक साइड पे रखें, ये मसले हैं हमारे, या हमारा मसला जो है ऑल टुगेदर रेड टेप को लड़ना या ब्यूरोक्रेसी को लड़ना है? नहीं, हमारा मसला फिल्म मेकर का फिल्म मेकर का है। Okay. एक्चुअली हमारे पास इतना बड़ा फिल्म मेकर है नहीं। हमारा जो लेवल है फिल्म मेकिंग का वो इतना बड़ा है नहीं जितना मौला जट का है। तो सर सो मेरे लिए वो एक्सेप्शन है। तो सर फिर बिलाल लशारी Does is not the come in the standard, if you're saying our cinema standard is Bilal Lashari? नो, Okay. our film standard is जवानी फिर नहीं आनी। जवानी फिर नहीं आनी। हमारा स्टैंडर्ड मौला जट Entertainment movie. Okay. मौला जट इज वे अबव Way above. एंड दैट काइंड ऑफ जिसको आप कहते हैं ना सोच रखना, वो अभी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सोच नहीं सकते। मौला जट ने जो सबसे बड़ा काम किया है जो अभी आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी 2 साल ही हुए हैं, मेरे हिसाब से अभी 2-3 साल और लगेंगे Okay. मौला जट को समझने में और मौला जट को फॉलो करने में। इतना टाइम लगता है बड़ी पिक्चर को समझने में Okay. कि जब कोई बहुत बड़ी चीज होती है तो इट टेक्स अबाउट 3-4 years बिफोर यू अंडरस्टैंड इट। उस सोच को बढ़ाना, उस लेवल पे ले जाने के लिए आपको टाइम लगता है, क्योंकि आपने कभी इतना बड़ा सोचा ही नहीं होता। अगर जवानी फिर नहीं आनी हमारा आप स्टैंडर्ड है, तो चले उसी स्टैंडर्ड को लेके दूसरे और फिल्म मेकर्स क्यों नहीं अपने why aren't they dropping their hat at the scene and they're saying okay fine we can show our prowess in this industry? दोनों चीजें एक साथ आ गई। इधर मौला जट आई 2022 में जी। और उससे पहले कोविड का एक बहुत बड़ा पीरियड गुजरा, 1.5 साल आपका सिनेमा बंद रहा। जी। सो सिनेमा वाज ऑलरेडी इन ट्रबल। बीच में एक एक्सेप्शन आ गया मौला जट, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। अब उसके बाद चूंकि नहीं है तो एवरी डे द सिनेमा इज गिविंग यू अ बैड वाइब। हर मेकर को एक बैड वाइब जा रही है सिनेमा से। मेरा अपना सिनेमा कराची का 4 महीने से बंद है। अब आप बताइए मेरे पास अगर आप आए और मुझसे पूछें कि नदीम साहब मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैं आपको क्या कहूँगा। हम 2018 तक हर आदमी जो आ रहा था हम उसको बकअप कर रहे थे, जाओ फिल्म बनाओ। बिल्कुल। अभी हम क्या कहें उनको कि मैं अपना सिनेमा बंद करके बैठा हुआ हूँ, 4 महीने हो गए, आपको मैं कैसे कहूँ कि फिल्म बनाओ। तो सर फिर सवाल तो फिर नेचुरली इसका यही आता है ना, या तो OTT या सिनेमा। पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है? पाकिस्तान का फ्यूचर देखिए रेगुलेशन में तो है ही नहीं, क्योंकि रेगुलेशन कोई करने के लिए तैयार ही नहीं है, और उसमें पार्लियामेंट ने इन्वॉल्व होना है, पार्लियामेंट करेगी नहीं। सो आपका फ्यूचर सिनेमा ही है, आपने सिनेमा को ही बढ़ाना है। You are saying OTT has no future in Pakistan? Is that what you're saying? नो, OTT भी देखें, अगर OTT भी कोई करने जाएगा तो आपको सब्सक्रिप्शन कौन देगा? People who are already watching other streaming पाकिस्तान में services. पिछले 50 साल से आप फिल्म मुफ्त में देखते हैं, आप पैसे नहीं देते उसके। Right. But sir, So, जिस पूरी कौम को आदत लगी हुई है मुफ्त में देखने की। Sir, there are a lot of streaming services, international and local. Few we have, Urdu Flix and iFlix and few others. And apart from that, Netflix, Amazon is also available to subscribers here. And there are many people who are actually watching those. Don't you think that there is a growing market and it's मैं आपको about? बताऊं कि नेटफ्लिक्स की यहाँ पर सब्सक्रिप्शन क्या है पाकिस्तान में। लास्ट मैंने चेक किया था, जी, उसमें अबाउट 100,000 सब्सक्राइबर्स हैं पाकिस्तान में, which is very, very low. which is very low. And India में it's above 3 million. And the population size is also very big, Definitely. And हम हमेशा जब इंडिया की बात करते हैं ना, तो we always take the ratio of 1:10. right? अगर मैं 1:10 भी देखूं तो पाकिस्तान में 3 लाख होने चाहिए, 3 लाख होने चाहिए। लेकिन है नहीं, और वो ना होने की वजह से आपकी इम्पोर्टेंस भी नहीं बनती। बिल्कुल। ये जो आप अभी हम बात कर रहे थे कि इंडिया ने आपका कंटेंट रोका हुआ है, वो रोका ऐसे नहीं है, ये ऐसे रोक नहीं सकते वो, लेकिन चूंकि आपकी अपनी मार्केट से कोई ग्रोथ नहीं है तो रुक रहा है। तो रुक रहा है। अगर आपकी अपनी मार्केट की भी ग्रोथ होती तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड भी बढ़ती, उसकी डिमांड भी बढ़ती है और उसके लिए कंटेंट भी बनाया जाता। नेटफ्लिक्स खुद आपको कंटेंट देता कि आप अपनी मार्केट के लिए बनाएं, क्योंकि आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी मार्केट से ग्रोथ हो Sir, रही है। we live in the digital time, right? Everybody's phone is now a streaming services for this and that and so entertainment wise as well. तो हमारे locally OTT streaming services को एक
मयार पे आने की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यही लोग जो आपको भी पता है, हमें भी पता है, केबल को भी पैसे तो देने ही पड़ते हैं ना। तो आप एक स्ट्रीमिंग सर्विसेज को पैसे दे रहे हैं, एक लोकल को, अगर हम अपनी लोकल इंडस्ट्री की बात करें, लोकल डिजिटल कंटेंट की बात करें, तो आपको नहीं लगता कि ये एक मार्केट की नीड है कि जिस पे ये प्लेटफॉर्म बनने चाहिए? और अगर बनने चाहिए तो ये कौन बनाना शुरू करेगा और ये किस लेवल पे बन सकते हैं? और शाज़िया की बात को कंटिन्यू करते हुए सर, मेरा इसमें सिर्फ ये ऐड करूंगा कि आपको ये ओटीटी प्लेटफॉर्म की नीड कहाँ से आती है? जब आप देखते हैं कि आपका जब ड्रामा जो चलता है और वो जब आप यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, जो चैनल्स हैं जिनके पास राइट्स हैं, बिल्कुल वो 4 मिलियन व्यूज पे जाते हैं, वो 40 मिलियन व्यूज पे जाते हैं। रिसेंटली देयर वाज दिस ड्रामा दैट हिट 40 मिलियन व्यूज। सो दैट शोज कि एक वैक्यूम है, एक नीड है, वो हम जाके यूट्यूब को दे रहे हैं। अगर हमारे पास यही फैसिलिटी अपने एक प्लेटफॉर्म और ओटीटी की होती, तो डोंट यू थिंक वी वुड बी अर्निंग दैट मनी टू? we would have taken a lot of advantage of that as well. एक्चुअली तो अगर आप देखने जाएं तो ये सारे टेलीविजन को ही मिलके करना चाहिए, एंड दे शुड गेट टुगेदर एंड दे शुड क्रिएट एन ओटीटी ऑफ देयर सेल्व्स, कि कम से कम व्हाट दे आर मेकिंग फ्रॉम यूट्यूब दे कैन मेक मच मोर ऑन देयर ओन on their if own. they create a platform where all dramas are there and everybody has to subscribe to that. चाहे आप उससे 50 रुपए की सब्सक्रिप्शन लें या 100 रुपए की लें, तो आपके तो पैसे बहुत ज़्यादा बनेंगे, लेकिन वी ऑलवेज वांट द इजी वे आउट, एंड इजी वे आउट इज जस्ट टू पुट इट ऑन यूट्यूब बजाय कि आप एक काम करें और बड़ी चीज़ को सोचें। सर यही OTT चैनल जो है ये खाली ड्रामों की हद तक नहीं है, मूवीज, सीरीज, ऑल काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, हाँ, जिसमें मूवीज फिर आ जाती हैं, राइट? लेकिन जितना आप छोटा होता है ना, आपका अगर आपकी इकोनॉमिक्स छोटी है तो उतना ही ज़्यादा कलेक्टिव खेलने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम इंडिविजुअल खेलते रहते हैं, हम कलेक्टिव सोचते ही नहीं है। मगर सर अब जैसे मैं वेस्टर्न सोच बदल रही है, कहते जी सिनेमा रेलेवेंट नहीं है, उनके यहाँ भी सिनेमा हाउसेस बंद हो रहे हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े थिएटर्स लाइक IMAX एंड अदर थिएटर्स आर क्लोजिंग डाउन। वो बोलते जी हम इतनी हमें पैसे नहीं मिलते अगर हम इसको लग्जरी अपार्टमेंट्स बना दें या मॉल्स बना दें या व्हाटएवर हैव यू, इसको एक रेजिडेंशियल या कमर्शियल एक्टिविटी में बना दें। सो आई मीन लुकिंग एट नॉर्थ अमेरिकन मार्केट एंड अदर मार्केट, तो सिनेमा जो मूवी मेकर्स हैं उन्होंने कहा कि जी हमारे भी ये 2 घंटे में हम कहानी नहीं सुना सकते। अब नैरेटिव हमारा बदल गया, वो लोग भी अपना ट्रेंड बदल गए। आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को ले लें, आप DC की यूनिवर्स को देख लें, देयर ऑल शिफ्टिंग टू अनदर ट्रेंड व्हिच इज कॉल्ड सीरीज, कि हम एक जो बात 2 घंटे में नहीं बता सकते वो हम एक 8 एपिसोड या 12 एपिसोड की टीवी सीरीज में बता रहे हैं। और बहुत सारी मूवीज तो अब डायरेक्ट OTT पे चली जाती हैं, सिनेमा में आती हैं। इंटरनेशनल मूवीज वी आर टॉकिंग अबाउट, Let's talk about Coming to America 2, which came after 40 years. You know, it was the most anticipated movie. Came straight to OTT, and you know, you had to have a subscription of Amazon to watch it. तो सर हम कुछ इस तरह नहीं कर सकते? एक्चुअली अगर आप देखने जाएं तो OTT हैज़ क्रिएटेड अनदर प्लेटफॉर्म, एंड दिस इज एन इंक्रीज in whatever content you can see. That does not diminish the reality of cinema. मेरे हिसाब से anything which you can see in your house, चाहे वो VCR से लेके आज तक जितनी भी चीज़ें हैं, Right. चाहे वो सैटेलाइट हो या इंटरनेट हो या टॉरेंट हो या नेटफ्लिक्स हो, अमेजोन हो, ये सारी चीज़ें आपके घर में, as long as you remain in the house, it won't affect cinema. Temporarily, yes. अभी जो आपको फिगर्स मिल रहे हैं कि सिनेमा के फिगर्स कम आ रहे हैं, वो सिनेमा के फिगर्स यहाँ नहीं है, दुनिया भर में आ रहे हैं। 40% डाउन इज इंडिया दिस ईयर एंड 25% डाउन इज हॉलीवुड दिस ईयर। तो सर जो लास्ट से लास्ट रजीम आई थी, हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने सिनेमा को एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बना दिया। उन्होंने कहा जी अब ये इंडस्ट्री है, और उन्होंने सपोर्ट भी किया। तो आई वुड लाइक टू आस्क यू सर कि आपको प्रेजेंट, अब बिकॉज द सेम रिजीम इज कंटिन्यूइंग इन दिस टेन्योर, आई वुड लाइक टू आस्क यू सर कि आपकी इनसे कुछ होप है इस प्रेजेंट गवर्नमेंट से कि ये आपको सिनेमा को, इन ऑल मूवीज को कुछ दे सकते हैं, इनसे कुछ ले सकते हैं हम? शी इज द ओनली वन सिंस 2016 हैज टेकन आउट टाइम and really gone into the depth of the problems of the industry, and that was how she came out with the policy. Right. क्योंकि जितनी ज़्यादा उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की है
और जितने लोगों से वो मिली हैं और जितने लोगों से उन्होंने पूछा है वो पहले किसी गवर्नमेंट ने नहीं। तो सर हमने इसका एडवांटेज क्यों नहीं लिया? एडवांटेज हमें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि जो वहाँ फेडरल में छोड़ के गई तो फेडरल में वो करा के गई और खुद निकल गई। जब वो खुद निकल गई तो पीछे उसको फॉलो करने वाला कोई नहीं था। हालांकि उन्होंने हमें एक दो बार कहा भी कि भाई मेरे दूसरे काम भी मैंने किए हैं, उन लोगों ने जाके अपने काम करा लिए, आप लोग वहीं बैठे हुए। अब वो बैठे हुए इसलिए हैं क्योंकि वहाँ डैम की एक कमेटी बन गई। अब कंट्रोल उनके पास था, हमारे पास तो था नहीं। अब हम जाके शोर कितना मचाएं। वही काम उन्होंने आके अब पंजाब में किया। सो नाउ वी आर वेरी होपफुल कि पंजाब में वो काम हो जाएगा बिकॉज शी इज सिटिंग देयर। सो प्रॉब्लम कभी कभार ये होती है कि जो समझ जाता है प्रॉब्लम को वो उसको बहुत आगे तक ले जाता है। If I am to understand, are we hopeful कि ये गवर्नमेंट शायद कुछ इसको? We are very hopeful from Punjab now because not for Sindh. Madam is sitting there, so she will be able to take it. It is very hopeful, but it is for Punjab, not for Sindh. No, not for Sindh. Not for Sindh. No, this. इसी बात पे हम एक छोटा सा break लेते हैं and we'll continue from here. Very interesting point. We'll just take a short break and we'll be right back. Welcome back after a short break. We'll continue asking नदीम साहब, आप कुछ कह रहे थे कि पंजाब में बहुत होपफुल है, लेकिन पंजाब में होपफुल मैंने आपको यही बताया कि बिकॉज ऑफ मरियम औरंगजेब दैट शी इज हैविंग अ रोल इन पंजाब एट दिस मोमेंट, गवर्नमेंट रोल। और पहले ये उन्होंने फेडरल में कराया जी, और वहाँ पर 2 बिलियन का एक फंड उन्होंने क्रिएट किया। ओके। और अभी हमें बताया गया है कि जी वो 2 बिलियन जो है वो 50 करोड़ रह गया है। अच्छा। और इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन उस 50 करोड़ का भी कुछ नहीं हो रहा। सो यहाँ इनके हाथ में, और इन्होंने अभी कमेटी बना के उसको भी इनिशिएट भी किया और इन्होंने अभी डेडलाइन भी दे दी है कि 3 महीने के अंदर अंदर दिस हैज़ टू बी फिनिश्ड। किन्होंने? मरियम। अच्छा। तो उनकी वजह से वी आर वेरी होपफुल दैट द पंजाब फंड इज गोइंग टू get its light of the day and इससे काम definitely आगे चलेगा। Will that work for Karachi as well? It can work actually। अभी ज़्यादा concentration पंजाब पे ही है। अच्छा। और ये जो फंड है वो इनिशियली तो पंजाबी फिल्मों के लिए है। अच्छा, पंजाबी फिल्मों के लिए। बट रीजनल लैंग्वेज की बात। लेकिन as she said in the first meeting कि we will consider other films also. अच्छा, so it can work for all Pakistan. So you've spent mashallah many years in the cinema, the film industry, visionary role you have played. आज का जो present time है cinema का movies को लेकर, what steps do you think we should be taking collectively on the unified, a front that can improve this condition that we are facing presently? What do you think we should do? What is your advice? देखें, सिनेमा इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है कि हम सिनेमा और बनाएं और हम साथ में फिल्में और बनाएं, और दोनों चीज़ों के लिए फंडिंग चाहिए। बिल्कुल। मैं गवर्नमेंट को भी ये बात समझाता रहा हूँ कि आपने 2001 और 2007 में किया था। दोनों पॉलिसी डिसीजंस थे। देयर वाज नो इंसेंटिव एज सच। कोई पैसे का आपने इंसेंटिव नहीं दिया था किसी को। और 12 साल पूरी इंडस्ट्री में कोई आपके पास नहीं आया, हर आदमी पैसे लगाता चला गया। राइट। सो गवर्नमेंट का काम भी यही होता है। गवर्नमेंट का काम है ग्राउंड बनाना, प्लेयर्स लाना गवर्नमेंट का काम नहीं होता। प्लेयर्स खुद आते हैं। अगर आप ग्राउंड अच्छा बना देंगे तो खेलने वाले खुद आते हैं उसके अंदर। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपने वो ग्राउंड बनाया और 10 साल के बाद आपने वो ग्राउंड बना के उसको आधा काट दिया, बोला आधे ग्राउंड में खेलो। आधे ग्राउंड में नहीं खेल सकते आप। अगर आधा ग्राउंड आप काट देंगे
तो आधे ग्राउंड में ना फुटबॉल हो सकती है, ना क्रिकेट हो सकती है, ना हॉकी हो सकती है। आपको नहीं लगता कि आप लोगों को अभी बहुत बहुत ये परफेक्ट सिनेरियो है जिसमें आप जैसे फिल्म मेकर्स को एंड प्रोड्यूसर्स को एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को छक्के लगाने चाहिए ताकि उन छक्कों की बेसिस पे ग्राउंड दोबारा से बढ़ जाए? आप अगर फिल्में बनाएंगे और आप थोड़ा सा एक्टिवली ये रोल प्ले कर देंगे। इट्स नॉट अबाउट माय लाइकिंग। दुनिया की हर फिल्म इंडस्ट्री का रेशो एक ही है, सक्सेस रेशो इज 90-10। Okay. 10% succeeds, 90% fail. So it doesn't matter how ambitious or how passionate about I am about filmmaking. At the end of the day, only 10% will make money, or they are great filmmakers. Are you producing any project in the future? Yes, we are. We are already on it, and hopefully we might do it next year. But then again, the problem remains the same. कि मैं चाहे कितनी भी अच्छी बनाना चाहूँ, बनेगी या नहीं बनेगी, I have no idea. ये बनेगी नहीं बनेगी तो ये तो आप बनाने के बाद ही आपको होगा। तो पब्लिक बताती है। माशाल्लाह। That is why it is the most beautiful thing to do. क्योंकि ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। So we should be in future looking forward to a movie under your. ना मैं इसको कंट्रोल करता हूँ, ना कोई डायरेक्टर कंट्रोल करता है, ना कोई प्रोड्यूसर कंट्रोल करता है। So at least we. ये सिर्फ पब्लिक कंट्रोल करती है कि वो इसको अच्छी देखिए इवेंचुअली तो पब्लिक ही डिसाइड करती है कि मूवी हिट है या नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरी चीजों में पब्लिक डिसाइड नहीं करती। वो बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे आप टीवी पे ड्रामा बना लें, अगर आपको प्रोडक्ट मिल गया, उसको स्पॉन्सर मिल गया, खत्म हो गई बात, वो ड्रामा बहुत बड़ा हिट है। बिल्कुल। Right, sir. And with that note, I mean, I personally, this is my first show, and I'm very grateful and honored to have a guest like Nadeem Saab. We had such great talk. मतलब मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि इस interview को end करें, but unfortunately, we're stuck for time, and there's so many other things that I wanted to ask him, but unfortunately, we couldn't, and ask those for you as well. But unfortunately, we don't have time. I would like to thank you, sir, for coming, giving us your time, and spending this insight with us, and making us learn a few more things that we really didn't know. Thank you, sir. Thank you for taking out your precious time and joining us. We absolutely enjoyed every minute of this conversation. We didn't even realize that so much time has passed. Thank you once again. We'll probably be calling you again because I think this conversation kuch adhuri si reh gayi hai. I'd second that. Right. With this, we come to the end of the episode. I hope आज के शो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना हुआ होगा, बहुत entertain भी हुए होंगे. So till next week, till another exciting new episode, must take your leave now. Thank you very much for watching. Keep watching Business Guru. Allah Hafiz.